যে রাম মন্দির নির্মাণ হয়েছে সেখানে কি আজানের জন্য একটি আলাদা করে কুঠি রাখা হয়েছে যেখানে মুসলমান ভাইয়েরা গিয়ে সেখানে আজান দেবে? যদি বলা হয় মসজিদের মধ্যে গিয়ে শুয়োর বলি দেবার কোনো ব্যবস্থা আছে? নেই। এই মান্যতা সারা পৃথিবী জুড়ে রয়েছে। রাম মন্দিরের সামনে বকরি ঈদের সময় মুসলমান ভাইয়েরা সেখানে জবাই করতে পারে? এর আগের যে আলোচনায় আপনারা বুঝতে পেরেছেন যে মহাবোধি মহাবিহারের যে ম্যানেজমেন্ট কমিটি আছে সেই ম্যানেজমেন্ট কমিটির পুরোটাই প্রায় ব্রাহ্মণদের কবজায় রয়েছে। আপনারা যদি প্রশ্ন করেন যে রাম মন্দির নির্মাণ হয়েছে সেখানে কি আজানের জন্যে একটি আলাদা করে কুঠি রাখা হয়েছে যেখানে মুসলমান ভাইয়েরা গিয়ে সেখানে আজান দেবে? উত্তর হলো না। যদি বলা হয় মসজিদের মধ্যে গিয়ে শুয়োর বলি দেবার কোনো ব্যবস্থা আছে? নেই। এই মান্যতা সারা পৃথিবী জুড়ে রয়েছে। রাম মন্দিরের সামনে বকরি ঈদের সময় মুসলমান ভাইয়েরা সেখানে জবাই করতে পারে? পারে না। এটাই হচ্ছে মান্যতা দিয়ে তৈরি হয়েছে। কিন্তু ঘটনাক্রমে এই ভারতের মাত্র 3.5% ব্রাহ্মণেরা তারা এতটাই পরের দ্রব্যে লোলুপ, তাদের লালসা এতটাই বেশি, এবং ব্রাহ্মণ্যবাদীদের সঙ্গে থেকে যে সমস্ত চোর জোচ্চোর তৈরি হয়েছে সারা ভারতবর্ষ জুড়ে, তাদের এই পরখেকোপনা এমন পর্যায়ে চলে গেছে যে তারা সারা পৃথিবী থেকে যে বুদ্ধগয়াতে যে ব্যবস্থাটি রয়েছে সেখানে যে দান ধ্যান আসে সেই দান ধ্যানগুলোকে চুরি করার জন্যে এই ব্রাহ্মণ্যবাদীরা বুদ্ধগয়া টেম্পল ম্যানেজমেন্টের মধ্যে ঢুকে পড়েছে। যে বুদ্ধগয়াতে এত এত পরিমাণের টাকা আসে যে সেখানে নালন্দার থেকেও বড় ইউনিভার্সিটি তৈরি করা যায়, পৃথিবীর সব থেকে ভালো হসপিটাল তৈরি করা যায়, শিক্ষাগার তৈরি করা যায়। ঘটনাক্রমে এটাই ছিল বুদ্ধ ভারতের আসল চেহারা, যে এই সমস্ত যে দানগুলো, ধম্মদান, সংঘদানগুলো বুদ্ধ বিহারে আসে, সেগুলোই রাজারা কি করতেন? জনকল্যাণে খরচ করতেন জন্যে আমাদের দেশে এত বড় বড় বিশ্ববিদ্যালয় তৈরি হয়েছিল যেখানে সারা পৃথিবীর মানুষ সেই বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে পড়তে আসতেন। এই ধরনের ব্যবস্থা ছিল, অর্থনৈতিক ব্যবস্থা ছিল আমাদের দেশে, বুদ্ধ ভারতে, প্রবুদ্ধ ভারতে। ঘটনাক্রমে এই ইংরেজ চলে যাওয়ার আগে ওই বিহারের এক রাজ্যপাল, এক ব্রাহ্মণ রাজ্যপাল, তিনি বুদ্ধগয়ার এই যে অর্থনৈতিক ব্যবস্থাটা রয়েছে সেই ব্যবস্থাতে ব্রাহ্মণদের কবজার মধ্যে আনার জন্যে বিটি অ্যাক্ট 1949 তৈরি করেন। বিটি অ্যাক্ট 1949-এ খুব চতুরভাবে এই রাজ্যপাল কি করেন? 4 জন বুদ্ধিস্ট মঙ্ককে রাখেন, 4 জনকে রাখেন মহান্ত, অর্থাৎ তারা ব্রাহ্মণ। ঘটনাক্রমে
বুদ্ধ গয়াতে যে ডিএম থাকবেন সেই ডিএমকে হিন্দু হতে হবে। অর্থাৎ কি দাঁড়ালো, ওই ডিএমকে খ্রিস্টান হলে চলবে না, ওই ডিএমকে মুসলিম হলে চলবে না, ওই ডিএমকে অবশ্যই হিন্দু হতে হবে এবং তিনি ওই বুদ্ধ গয়া ম্যানেজমেন্টের মধ্যে ঢুকবেন। বুদ্ধ গয়া যে ম্যানেজমেন্ট কমিটি তার মধ্যে ঢুকে পড়বেন ওই ডিএম। যদি গয়ার ডিএম খ্রিস্টান হয়, যদি গয়ার ডিএম মুসলমান হয়, তাহলে একজন প্রভাবশালী হিন্দুকে ওই ডিএম এর পরিবর্তে বুদ্ধগয়া ম্যানেজমেন্ট কমিটির মধ্যে ঢোকাতে হবে। এই অ্যাক্ট রয়েছে, বিটি অ্যাক্ট 1949। ফলে এই অ্যাক্টের সুযোগ ধরে পোঙ্গা পাষণ্ডের দল এই বুদ্ধগয়া ম্যানেজমেন্ট কমিটির মধ্যে ঢুকে গোটা ইউনেস্কোর যে হেরিটেজ সেন্টার, ইউনেস্কোর হেরিটেজ সেন্টার মানে কি, এই সমস্ত পোঙ্গা পাষণ্ডগুলো সেগুলো বোঝে। ইউনেস্কোর হেরিটেজ সেন্টার হচ্ছে তথাগত বুদ্ধ সেখানে বোধিসত্ত্ব লাভ করেছিলেন এবং সম্রাট অশোক তথাগত বুদ্ধের এই বোধিসত্ত্ব লাভ করার যে স্থান, সেই স্থানে তার মনের মতো করে একটি বুদ্ধ বিহার নির্মাণ করেছিলেন এবং সেই বুদ্ধ বিহারের পাশেই ছিল অশোকারাম, অর্থাৎ তিনি নিজেই সেখানে বসবাস করবেন। এইভাবে তৈরি হয়েছিল বুদ্ধগয়া মহাবিহার। ঘটনাক্রমে 1949-এর অ্যাক্টের পরে 11 মাস পরে ভারতবর্ষের সংবিধান আমরা পাই এবং সংবিধান পাওয়ার সাথে সাথেই যেটা হয় যে এই যে আগের তৈরি করা কোনো আইন আর মান্যতা থাকে না, সেগুলো বাতিল হয়ে যায়। কারণ সংবিধান যে বিধান দিয়েছে তাতে সংশ্লিষ্ট মানুষের ধর্মাচরণের অধিকার আছে, সংশ্লিষ্ট ধর্মাবলম্বী মানুষের অ্যাসেম্বল করার ফান্ডামেন্টাল রাইটস রয়েছে, মত প্রকাশের অধিকার রয়েছে। এইগুলোকে মান্যতা দেওয়া হয়নি জন্যে ওই বুদ্ধ বিহার যে ইংরেজ আমলের যে আইন, সেটা একটি অবৈধ আইন। সেই অবৈধ আইন এখনো চালিয়ে যাচ্ছে এই পাল্টুরাম নীতিশ কুমার। এবং ঘটনাক্রমে আপনাদের জানিয়ে দিই, এই পাল্টুরাম দীর্ঘ 18 দিন ধরে যে অনশন চলছে তাতে পাল্টুরামের সাথে যোগাযোগ রাখা হয়েছে, তাদের ম্যানেজমেন্ট কমিটির সঙ্গে যোগাযোগ রাখা হয়েছে। হঠাৎ করে গত কাল রাতে 28 তারিখ রাত 1টার সময় এই পাল্টুরামের পুলিশ এবং সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের, অর্থাৎ দুটো মিলে, এই মনোবাদী দুটো সরকার মিলে রাতের বেলা হামলা করেছে ওই বুদ্ধগয়া মহাবিহারে, যেখানে বুদ্ধ ভান্তেরা এবং ভিক্ষুণীরা যেখানে অনশন করছেন। ভিক্ষুণীরা রাতের বেলা অবস্থান করছেন ওখানে মশারি খাটিয়ে, সেই সমস্ত গিয়ে তন্ন তন্ন করেছে। নীতিশ কুমারের পুলিশেরা সেখানে গিয়েছে, কাদের নিয়ে? সেন্ট্রাল ফোর্স নিয়ে গেছে। অর্থাৎ পাল্টুরাম এবং বিজেপি একভাবে আক্রমণ করতে শুরু করেছে এই ভারতের মূল নিবাসীদের আসল যে বিচারধারা, সেই বিচারধারার উপরে আঘাত করতে শুরু করেছে। এমনিতে খানিকটা দখল নিয়ে নিয়েছে বুদ্ধ বিহারের, আবার এইভাবে বুদ্ধ ভিক্ষুদের, বুদ্ধ ভিক্ষুণীদের অপমান করে তাদের টেনে টেনে তোলা হয়েছে পুলিশের গাড়িতে, শরীর চেক আপ করার জন্য, স্বাস্থ্য পরীক্ষা করার জন্য। তারপরে একটা স্বাস্থ্য কেন্দ্রে গিয়ে একটা শেডের নিচে তাদের ছুঁড়ে ফেলে দেওয়া হয়েছে। ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে সারা রাত তারা ঘুমোতে পারেনি, সারা রাত তারা মশার কামড়ে জেগে থাকতে হয়েছে। কোনো ধরনের চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়নি, সেইভাবে ফেলে
রেখে দেওয়া হয়েছে। তারপরে আমাদের যারা অন্যান্য অনশনকারী তারা সেখানে গিয়ে বুদ্ধ ভ্রান্তদের সঙ্গে কথা বলেছেন। সে সমস্ত কিছুই আজকে আপনাদের দেখাবো। ঘটনাক্রমে আরো জানিয়ে রাখি, পাল্টুরাম এতটাই হিংস্র হয়ে উঠেছে যে ওই যে আজকে 18 দিন ধরে যেখানে অনশন হচ্ছিল বোধগয়ার পাশেই, সেই অনশন স্থল থেকে ভ্রান্তেদের সরিয়ে দিয়ে তাদেরকে 2 কিলোমিটার দূরে একটা খোলা আকাশের নিচে বালি ভর্তি একটি মাঠে তাদের ছেড়ে দিয়েছে। কোনো ধরনের ব্যবস্থা করেনি অনশনের জন্যে। অনশন করা একটা ফান্ডামেন্টাল রাইটস, তার জন্য ব্যবস্থা নিতে হয় সরকারকে। আর এই পাল্টুরাম নীতিশ কুমার সরকার বুদ্ধ ভ্রান্তদের সামনে মাথা নত করে সারা পৃথিবীর মানুষেরা তারা মান্যতা দিয়ে কথা বলে। এখানকার প্রধানমন্ত্রী, এখানকার যে সমস্ত ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের মালিকেরা বিদেশে গিয়ে বড় বড় কথা বলে, আমরা বুদ্ধের দেশ থেকে এসেছি। প্রধানমন্ত্রী বলেন ভারতবর্ষ যুদ্ধ দেয়নি, বুদ্ধ দিয়েছেন। সেই প্রধানমন্ত্রীর থাকা সত্ত্বেও এই পাল্টুরামের এত বড় সাহস কি করে হয় যে বুদ্ধ ভ্রান্তদের এইভাবে একটি খোলা আকাশের নিচে ভয়ঙ্কর রোদ্দুরের মধ্যে বালির উপরে ছেড়ে দিয়ে চলে আসা হলো। সেখানে কোনো বসার জায়গা নেই, মাথার উপরে কোনো ছাদ নেই, মাথার উপরে কোনো কিছু নেই। সম্পূর্ণভাবে যুদ্ধ ঘোষণা করেছে এই মনোবাদীরা। এই পাল্টুরাম হচ্ছে সেই শিখণ্ডী। সুতরাং বহুজন মানুষ, মূল নিবাসী মানুষ, আগামী এই নির্বাচন, বিহারের নির্বাচন, এই সমস্ত দালাল ফেরব্বাস পাল্টুরামদের অবশ্যই শিক্ষা দিতে হবে, যাতে এরা কোনোদিন আর রাজ ক্ষমতায় আসতে না পারে। ভারতবর্ষের রাজ ক্ষমতা যেন আর দখল না করতে পারে, এই শিক্ষা দিয়ে ছেড়ে দিতে হবে এই পাল্টুরামদের। আপনারা সেইভাবে তৈরি হন, যেভাবে আপনারা দেখুন কিভাবে বুদ্ধ ভ্রান্তদের ছেড়ে দিয়ে আসা হয়েছে খোলা মাঠের নিচে। দেখুন সামনে, দেখুন পেছনে বালি, বালির উপরে একটা চট বিছিয়ে নিজেদের মতো ব্যবস্থা করে নিতে হচ্ছে বুদ্ধ ভ্রান্তদের। সারা পৃথিবীর বুদ্ধ বিচারধারার প্রতিনিধিরা তারা তাদের যে বিরাসত, সেই বিরাসতকে ফিরে পাওয়ার জন্যে তারা অনশন করছে। তাদের কথা না শুনে তাদেরকে এইভাবে ফেলে দেওয়া হচ্ছে একেবারে খটখটে রোদের মধ্যে, তাও বালির ওপরে। আপনারা সবাই দেখুন এবং খুব তাড়াতাড়ি এই বুদ্ধ ভ্রান্তদের পাশে দাঁড়ান। আমি সমস্ত ধর্মের বন্ধুদের কাছে করজোড়ে আবেদন করছি, আপনারা দ্রুত এই ভ্রান্তদের পাশে পৌঁছে যান, তাদের ওপরে ছাদের ব্যবস্থা করুন, তাদের অন্তত ওপরে যাতে এই প্রচণ্ড রোদের মধ্যে তাদের শরীর অসুস্থ না হয়ে যায়, তারা ভয়ঙ্করভাবে অসুস্থ না হয়ে পড়ে, সেই ব্যবস্থা করার জন্যে আবেদন করছি। আমি সমস্ত মানুষের কাছে করজোড়ে আবেদন করছি। বন্ধুরা, আপনারা জানেন যে এই অনশন আজকে 18 দিনে পড়েছে। আর চালাকি করছে পাল্টুরাম। গত 28শে ফেব্রুয়ারি মধ্যরাত্রে যে লজ্জাকর ভাবে তিনি এই তাদের ভাড়াটে কিছু গুন্ডা এবং পুলিশ এবং মানে কেন্দ্রীয় বাহিনীকে দিয়ে যেভাবে নারী পুরুষ নির্বিশেষে ভিক্ষু ভিক্ষুণীদের নিয়ে এসে হসপিটালের পাশে ফেলে রেখেছে, তা নিন্দনীয়। সারা পৃথিবী দেখছেন, আজকে মিডিয়ার জগতে সারা পৃথিবী দেখছে যে নীতিশ কুমারের মতো একটা অসভ্য ইতর এরকম মানুষ হতে পারে না, যে বুদ্ধ ভ্রান্তদের মোটেও শ্রদ্ধার চোখে তো ভালো, সে মনে করছে একটা বোঝা। বুদ্ধ ভ্রান্তেরা আজকে প্রতিবাদ করলে মহাবোধি সোসাইটি নিয়ে যে বিশাল পরিমাণের
বিদেশি মুদ্রা এখানে আসে, সেই বিদেশি মুদ্রা বন্ধ হয়ে যাবে, তার পরিকল্পনা নিয়েছে পল্টুরাম। আমরা শুধু চেতাবনী নয়, ভারতবর্ষের 85% মানুষের হয়ে পরিষ্কার করে বলতে চাইছি যে এই 3.5% ব্রাহ্মণবাদীদের চক্রান্তে আজ ভারতবর্ষ এই জায়গায় পৌঁছে গেছে। বুদ্ধগয়া, বোধি বিহার, মহাবিহার, সেই মহাবিহার এমনভাবে তৈরি করা হয়েছিল যে তার একটি অংশে সম্রাট অশোক নিজেই থাকতেন। আপনারা এর আগে দেখেছেন, এটা ভাইরাল হয়েছে, যে সেই কুঠিটিকে যেখানে সম্রাট অশোক নিজে থাকতেন, সেই কুঠিটিকে দখল করে বসে আছে এক পঙ্গা পাষণ্ড। সেই পঙ্গা পাষণ্ড গল্প মারছে, আষাঢ়ে গল্প, যে গল্প তিনি বলছেন এটা পঞ্চ পাণ্ডবের কুঠি। সেই মহাবিহারকে কিভাবে কলুষিত করছে এবং কিভাবে নোংরা করে ছাড়ছে, আপনারা দেখুন সেটা। দেখুন, ये जगह कौन सी है? पांडु की जगह है। हाँ जी, तो पांडु की जगह है। पांडु से मतलब कैसे जुड़ी हुई है बुद्ध से? ये यहाँ पिंड दान करने आए थे, पांडव जो महाभारत में जो मारे गए थे ना, पिंड दान करने आए थे। हाँ, उन्हीं के लिए पिंड दान करने आए थे। गया अभी। अच्छा, বুঝুন, পাণ্ডব বুদ্ধের নানা ভঙ্গিতে মূর্তিকে এরা জানেও না, না জানে শিল্প, এরা না জানে শিল্প, না জানে ভাস্কর্য, না জানে কোনো কিছু। মূর্খের দল, মূর্খের দল, কিছুই জানে না, কোনো ধরনের আর্কিওলজিক্যাল তাদের সেন্স নেই। তারা গল্প মারছে, আষাঢ়ে গল্প, যে এই দেখুন এটা পাণ্ডব। চোখের সামনে আপনারা দেখতে পাবেন গৌতম বুদ্ধ বিভিন্ন মুদ্রায় বসে আছে, আর এই পাষণ্ডদের কাছে সেটা পঞ্চপাণ্ডব। বুঝুন, দেখুন, আবার আমাদের প্রাচীন যে পরম্পরা ছিল তাকে বলা হতো, এই বুদ্ধগয়াতে একটা অর্থনৈতিক ব্যবস্থা ছিল, সেখানে মানুষ স্বেচ্ছায় গিয়ে পিণ্ড দান করতেন। পিণ্ড দান মানে হচ্ছে খাদ্য দান। কাদের খাদ্য দান করতেন? ভিক্ষুদের, মানুষদের খাদ্য দান করতেন। সে পিণ্ডটাকে পিণ্ডি বানিয়েছে এরা। পিণ্ডটা ছিল যারা শেঠ এবং যারা বড়লোক মানুষ, তারা বিভিন্ন খাদ্যদ্রব্য নিয়ে এই বুদ্ধগয়াতে আসতেন এবং সেখানে বুদ্ধ বিহারের যত ভান্তে ছিলেন, ভিক্ষু ভিক্ষুণীদের ছিলেন, তাদেরকে সঙ্গদান করতেন, অর্থাৎ খাদ্য দিয়ে সঙ্গদান করতেন। এবং সেই খাদ্য দান করা মানেই হচ্ছে পিণ্ড দান করা। আর সেই পিণ্ডটাকে এরা কি করেছে? এরা কাটছে কলা, আতপ চাল, তারপরে তিল, তুলসী, এই সমস্ত অখাদ্য দিয়ে করে কাক মানে কুকুরের ভোজ্য একটি খাদ্য তৈরি করে তার নাম দিয়েছে পিণ্ড। ভাবুন, একটি শব্দ, যে শব্দ মহান শব্দ, সেই শব্দটাকে এরা পিণ্ড থেকে পিণ্ডিতে পরিণত করেছে। আর সেই পিণ্ডি চটকাতে এসেছে আর এক পাষণ্ড। দেখুন, हाँ हमको लगता है कि 2010 से पिंड करा रहे हो। तो ये बुद्ध विहार तो बुद्ध के ज्ञान प्राप्ति का स्थल है। प्राप्ति का स्थल वहाँ। और ये पूरा परिसर है, देखो उधर भी ये पूरा परिसर है। तो इस परिसर में तो बौद्ध लोग होते हैं। तो ये पिंड कौन सी मान्यता में होते हैं? यहाँ भी ये किस मान्यता का प्रतीक है? पितृकायान से यहाँ। किन की मान्यता है? ये हिंदू की है ना? हाँ, तो हिंदू की मान्यता के लिए आपको कहाँ कराना चाहिए? काशी में कराना चाहिए, यहाँ मथुरा में कराऊं? गया में भी होता है, तो गया में तो बहुत बड़ी जगह है ना, गया में पूरा शहर आता है। गया में ये आता है क्या? हर जगह भी होता है। इस शास्त्रों में ये तो बुद्ध का महासंबोधि स्थल है। हम यहाँ बचपन से, जब से हमारे बाप आए, दादा आए, मैं भी आ रहा हूँ। क्योंकि इसलिए आ रहे ना, क्योंकि बौद्ध समाज नहीं जागा। बौद्ध समाज को पता नहीं था राम मंदिर में जाके कोई नमाज पढ़ेगा अच्छा लगेगा? है बताइए आप। कोई जाके विष्णु के मंदिर में जाके चर्च की घंटी बजाएगा अच्छा लगेगा आपको? तो ये पवित्र स्थल पूरी दुनिया में बुद्ध के नाम से फेमस है, प्रसिद्ध है। पूरी दुनिया के लोग यहाँ बुद्ध को नमन करने आते हैं।
वो आपको देखेंगे, क्या सोचेंगे कि भाई ये हिंदू मान्यता के लोग हैं, बौद्ध मान्यता के स्थल पे लोग आए हैं, तो पवित्रता होती है। भाई अगर आपकी वेशभूषा है तो पंडित जी हो, अभी आपको कोट पैंट पहना दे, कौन पंडित जी कहेगा? नहीं कहेगा ना कोई। तो पंडित जी का एक अपनी गरिमा है, एक वेशभूषा है, वो बनी रहनी चाहिए। तो बुद्ध विहार की एक अपनी गरिमा है, इसकी एक मान्यता है। तो इस मान्यता में आप लोगों ने जो ये श्राद्ध का, जो पिंडदान का या पिंडा पुराने का जो ये आडंबर शुरू कर दिया है, क्या नहीं आपको लगता है कि आप लोग गलत कर रहे हैं? भाई आपको ये नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर ये बातें आगे बढ़ेगी, अब विवाद बढ़ेगा, तो विवाद तभी तो टकराएगा। आपकी मान्यता आपकी सीमा में होनी चाहिए। तो अभी जो सरकार है, चाहे केंद्र सरकार हो, चाहे बिहार सरकार हो, चाहे यूपी की सरकार हो, वो क्या कह रही है? हिंदुओं को हिंदुओं की मान्यता माननी चाहिए, अपने स्थलों पे बौद्धों को माननी चाहिए। জেরাতে ভিক্ষু এবং ভিক্ষুণীদের তুলে নিয়ে যাওয়ার জন্য পুলিশ এসেছে, কেন্দ্রীয় যে বাহিনী, সেই বাহিনী এসেছে একেবারে রাত 1টা-1:30টার সময়। আপনারা ভাবতে পারেন কতটা অসভ্য বর্বর হলে এইভাবে রাত 1টা-1:30টার সময় কেন্দ্রীয় বাহিনী এবং পুলিশ পাঠিয়ে দেওয়া যায় এবং গিয়ে সেখানে শুয়ে আছে। তাদের সন্ধেবেলায় চেক আপ হয়ে গেছে, অলরেডি মেডিকেল চেক আপ হয়ে গেছে, ভিক্ষুণীরা সেখানে ঘুমোচ্ছেন। সেরকম অবস্থায় পুলিশ এসে তাদের হুজ্জতি করছে এবং অধিকাংশ ভিক্ষুদের তারা তো মানে লাঠি ধরে না বর্বরদের মতো, তারা তো ত্রিশূল নিয়ে তাড়িয়ে যায় না বর্বরদের মতো, তারা তো তলোয়ার নিয়ে তাড়িয়ে যায় না বর্বরদের মতো। তারা শান্তিপূর্ণভাবে অবস্থান করছিল। সেই শান্তিপূর্ণ অবস্থানের উপরে পুলিশ এইভাবে তাদেরকে ধমকাচ্ছে এবং নিয়ে যাওয়ার জন্য। দেখুন আপনারা, स्टेटमेंट नहीं होगा, आइए ना, सुबह आइए। ठीक है, डॉक्टर साहब कहेंगे अभी तो हम सो रहे हैं, अभी जाइए ना, सुबह आइएगा। और यहाँ आकर जबरदस्ती ले जा रहे हैं। और ये मैसेज रखने जाएगा कि 12 बजे रात के ये लोग उठा करके ले आए दवाई कराने के बहाने, तो ये रोकेंगे देश भर के लोगों को। তারপরে দেখুন এই ভামতেদের এই শেডের নিচে, এই যে শেড, এই শেডের নিচে, এটা কি হসপিটাল? এই শেডের নিচে এনে এইভাবে ফেলে রেখে গেছে। আমি ধন্যবাদ জানাই সেই সমস্ত ইউটিউবারদের এবং সেই সমস্ত চ্যানেলদের যারা এই ভিডিও তুলে সারা পৃথিবীর সামনে নিয়ে এসেছেন এই ধরনের অবিচার, যেটা বিহার সরকার এবং কেন্দ্রীয় বাহিনী যৌথ ষড়যন্ত্র করে ভিক্ষুদের ওপরে এইভাবে নির্মমভাবে তাদের এইখানে ফেলে গেছে। এখানে পৌঁছে গেছেন সকালবেলায় ভীম আর্মি এবং আকাশ লামা, যিনি নেতৃত্ব দিচ্ছেন। আমরা শুনব ভীম আর্মি এবং আকাশ লামার কাছ থেকে যে কিভাবে এই যে ভিক্ষুদের এবং ভিক্ষুণীদের এইভাবে ফেলে গেছে। এখানে এর পাশেই রয়েছে হসপিটাল, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। देखिए, विशेष करके सबसे बड़ी बात आप जो अभी कह रहे थे, रात के 12:30 बजे जी, 12, 12:30, 1 बजे तक इस प्रकार का नाटक हुई। शांति पूर्वक जो हम लोग अनशन में बैठे थे 16 दिन तक, और कल तो पटना में गृह सचिव अनिमेष पांडे जी के साथ बैठ के अच्छी सौहार्दपूर्ण में हम लोग बात भी किए थे, ज्ञापन भी दिए, और वहाँ पर एसडीओ भी उपस्थित थे। लेकिन अचानक रात को वहाँ पर आपको परमिशन नहीं है, और पहले तो हेल्थ इशू को लेकर वहाँ पर आए थे। हालांकि किसी को हेल्थ इशू का नहीं था, हम लोग अपने प्राइवेट डॉक्टर भी यूज कर रहे थे जी। और रात के 12, 12:30 बजे करीब उठा के एम्बुलेंस में उठा के यहाँ पर अभी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में हम लोग बैठे हैं। रात भर यहाँ पर सोए भी नहीं है जी।
तो ये जाति है अपने। हम इतने आस्था से बोध गए आते हैं अपनी धर्म स्थल पर जी जी, और शांति पूर्वक हम अपने हक अधिकार के लिए मांग रख भी रहे थे। सरकार के तरफ से बात भी चल रही थी जी, लेकिन बहुत अतिक्रमण है। कल आपका वीडियो भी देख रहा था, हमें पटना में था। हाँ, प्रत्येक धर्म की अपनी अपनी आस्था होती है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन जिस प्रकार से कर रहे हैं ये सही काम नहीं कर रहे हैं जी जी। और अभी हम लोग हैं, लेकिन हम लोग अनशन तो ये रुकेगी नहीं और अनशन तीव्र होगी जी जी, क्योंकि हम लोग सोचे थे हफ्ते दिन पर रुकेंगे, सरकार से अच्छी बात हो रही है, नहीं हुई है। तो ये एक संवैधानिक देश में, एक रिपब्लिक देश में जी जी, तानाशाही की तरह करना सही बात नहीं है ये। तो ये किसी भी चीज के लिए आप हम लोग शांति से बैठे हुए थे, ऐसा कुछ नहीं, कोई हल्ला नहीं था। हमको अब उग्र करने के लिए ये कोशिश की जा रही है। देखिए वो तो परमिशन नहीं देगी, तो हम लोग सोचना 1 महीने पहले दिए थे और अनशन की तो परमिशन भी नहीं होती ऐसा भी। और हम एक्सपेक्टर थे परमिशन नहीं देगी, लेकिन हम लोग सूचना 1 महीने पहले दिए हुए थे, उसका रिसीट भी हमारे पास है। ठीक है, 12 और 13 को थोड़ा एक बात आपस में बात मत कीजिए। 12 और 13 को कोई वीआईपी तो हमको लगा नहीं। नीतीश कुमार जी जो मुख्यमंत्री आने वाले थे वो तो आए भी नहीं थे वहाँ पर। जी जी, एक तानाशाही जो प्रकार का हम लोग को रवैया लगा, क्योंकि अपने जगह पर आप बोल रहे गया में जाकर गांधी मैदान में कीजिए धरना, हमारे धरोहर है वहाँ पर। हम तो अपने धरोहर को बचाने के लिए बीटी एक्ट 1949 को निरस्त करने के लिए हम लोग वहाँ पर शांतिपूर्वक अनशन में बैठे। आप बैठ भी नहीं रही है और कुछ पालतू भिक्षु लामाओं को लेकर आप सोचते पूरे बौद्ध समाज को दबा के रहेंगे, ऐसा कतई नहीं होगा। और वो भिक्षु जो पालतू बन के बैठा हुआ है उनसे मैं आगाह करना चाहता हूँ, समाज आपसे हिसाब किताब लेगी। खबरदार, आप जो अफवाह फैला रहे हैं आप लोग जी जी, और जो ये जो बौद्ध समाज पूरे पृथ्वी के, जो संसार के बौद्ध, पूरे भारत के बौद्ध को जो दुख पहुंचा रहे आप लोग, जी जी, मैं इतना कहना चाहता हूँ। आज ये जो बांते लोग का जो आंसू आप लोग को रुलाएगी, इतना याद रखना, इतना मैं बोलना चाहता हूँ। अच्छा, आपको न प्रशासन उस दिन बोला था, उसके बाद न डीएम आपको कुछ बोले थे, उसके बाद लेकिन ऐसा क्या हुआ कि रात में उठा ले गए लोग? डीएम साहब से जो मीटिंग हुई थी, हम लोग ने कहा था कि ये अनशन तब तक हम लोग विड्रॉ नहीं करेंगे जब तक सरकार से कोई कॉन्क्रीट पॉजिटिव जो ये हम लोग का जो मांग है इसके लिए डिसीजन नहीं देती है जी। और हम चाहते हैं सरकार अपने पक्ष से बात रखे, हम लोग अपना तथ्य रखेंगे जी जी। और पूरे संसार में इस प्रकार का आग की तरह ये फैली हुई है, अब देखिएगा क्या होने वाली है। आप यही चाह रहे थे, हम लोग शांति पूर्वक से चाह रहे थे, हम यहाँ अशांत करने नहीं आए हैं, हम अपना हक अधिकार मांगने आए हैं। और जबरदस्ती आप अतिक्रमण करते जा रहे हैं और हम देखते रहेंगे महाबोधि के लिए, ये कतई पे नहीं हो सकता है। अब यहाँ देखिए भिक्षु जो बैठा हुआ, आप दिखा दीजिए इस प्रकार से रात भर सोए नहीं है जी जी। तो यहाँ हमारे जबरदस्ती उठा के लेके आए हैं 8 भिक्षुओं को ट्रीटमेंट के नाम पर एम्बुलेंस में किया, लेकिन बाकियों को तो जबरदस्ती। अब वहाँ पर एक भिक्षुनी बैठी हुई है, देखिए संघमित्रा, ठीक है ना, उनका भी तबीयत भी खराब है, लेकिन हम लोग इसका जवाब देंगे। तो देखिए भंते जी है हमारे पास, इनसे थोड़ा जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर रात में ऐसा क्या हुआ। भंते जी, ऐसा रात में क्या हुआ, थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताइए। हम जो ही लेटने के बाद में वहाँ 12-14 के संख्या में अंदर ढुके, जिसमें सीओ थे, सर्किल अफसर,
डीएसपी साहब थे, एसडीएम थे। वो हमको कहे, डॉक्टर के लेके आए, कहे कि भंते जी ये खुला में है आप लोग, इसलिए थोड़ा सा चेक करवा दीजिए। हम लोगों को चेक करवाए, कहें कि चेक तो शाम को हुआ है, हम आपके साथ गए थे पटना, जब आए तो हमको ऐसा मिला तो सामने चेक हुआ। कहे कि नहीं फिर से चेक करवा दीजिए। चेक करवाए तो उन्होंने कहा, कोई के कहे कि ऐसे ठिकाने जो बुझाता था बोल दिए, किसी को लो है किसी को हाई है। हमने कहा कि ठीक है ऐसा कीजिए, आधे लोगों को अभी आप लेकर के जाइए, ये लोगों को दवा दे करके लौटा दीजिएगा और फिर बाकी लोगों को आप लेके जाइएगा। कहें कि ठीक है। तो जब हम 6-7 लोगों को एम्बुलेंस में कहें कि ठीक है जाइए, बगल में है, भूल के भी चल जाइए। आज तो कि उसको भी रद्द हमने किया है, जिसका के बोध के पास है, हम चिट्ठी दे दिए हैं। हम कहें कि आपने किसको चिट्ठी दिए न दिए वो मालूम नहीं है, लेकिन मेरे पास हम लोग जो आपको दे दिए हैं सूचना का रिसीविंग है। और आपने कहा कि VVIP हमारा जो कार्यक्रम है, तो 2 दिन हम लोग माघ पूर्णिमा के दिन ही 12 फरवरी से यानी बाबा साहब के स्टैचू के पास में ही हम 2 दिन आप लोगों को सम्मान किया। फिर आपके माध्यम से आपने कहा कि DM साहब के पास चलिए, आपको बुलाए हैं। फिर वहाँ हम लोग हमारे ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम के जनरल सेक्रेटरी आकाश लामा जी, हमारे भदंत गुरु प्रज्ञाशील जी और हम और हमारे साथी लोग गए। वहाँ भी वार्ता हुई, उन्होंने कहा कि हम आगे ही बताते हैं। वहाँ तक चला। जब कल की बात हुई, कल हम लोगों को सरकार के जो गृह सचिव जो होते हैं उनके पास जब हम लोग गए, वहाँ ADM स्वयं थे। हमारे पास एक छोटा सा वीडियो भी है कि वहाँ जो उनके हमारे मुख्यमंत्री के जो गृह सचिव हैं उनसे वार्तालाप में उन्होंने कहा कि 1 सप्ताह के अंदर में आपका सूचना मिल जाएगा। बिल्कुल। हम उनको से करबद्ध प्रार्थना करते हुए कहे कि हम लोग जब तक ले वहाँ कोई सरकार के लिखित हम लोगों को नहीं मिलेगा आश्वासन, तब तक ले हम लोग वहाँ बैठेंगे। बहुत मैत्री में उन्होंने बोला कि ठीक है, ये तो सभी पब्लिक का अधिकार है, आप लोग बैठे हैं, बैठे रहें। उस समय कुछ SDO नहीं बोला और 12 बजे आकर के पहले तो 2 लाइन मैत्री दिखाया, उसके बाद में हम लोगों के साथ में जैसे तैसे बात किया। कहा कि जब आधे घंटे को जब अथी में एम्बुलेंस में बंद कर लिया, तब वो कहा कि आप लोगों के ऊपर FIR हुआ है। हमने उनको कहा कि FIR कॉपी दिखाइए। कहा कि वो सब कुछ नहीं, आप लोगों को चलना ही चलना होगा, यहाँ नहीं सब करना होगा। हम उसके बाद में कहे कि ठीक है, अगर FIR है तो हथकड़ी ले आइए। उसके बाद में कुछ आपका सेंट्रल पुलिस थे, माने 70 के संख्या में लगभग थे, उसमें 5 बेसी या कम हो सकते हैं, लेकिन इससे कम नहीं थे। ये लोगों ने भी धमकाया और कहा कि आप लोगों को चलना ही चलना पड़ेगा, यहाँ ये सब करने का चीज नहीं है। उसके बाद में हम कहे हमारा कहीं होगा कोई लेखन बनाया होगा, हम कहे थे कि देखिए आप ये जो अशांति फैलाए हैं, हम कल आप लोगों के हमारे साथ आए, वो आनंद बनते हैं, उनके साथ में तीरा खींचे, हाथापाई भी किए। उसके बाद में हमारी संगमित्रा कही कि हम स्वस्थ हैं, हम नहीं जाऊंगी। उन्होंने कहा, एक लेडीज पुलिस थी, उससे उन्होंने नहीं जब उठी तो SDM खुद उनका कमर में हाथ लगा करके SDM और उनको कहें कि नहीं चलना ही पड़ेगा। 1-2 और पुलिस को डांटा कि अरे तुम लोग देख रहे हैं क्या, ले चलो गाड़ी में बैठाओ। और तब 3-4 को मिल करके उनका घिसिया करके एम्बुलेंस में बंद किया। जी अच्छा, हम एक चीज जानना चाहेंगे भंते जी कि SDM और CO तो आप लगातार आप लोग के साथ दे रहे थे, फिर ऐसा कैसे हुआ? कल भी साथ थे, उनके सामने मुख्यमंत्री के जो गृह सचिव जो था उसके सामने बात वार्तालाप, जब हमारे ज्ञापन इन्होंने जनरल सेक्रेटरी ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम के आकाश लामा जी और भदंत प्रज्ञाशील जी दिए, तो हमने मौखिक उनको बताया कि भाई आप 1 सप्ताह के करें तो हम लोग वहाँ भूख हड़ताल तोड़ने नहीं जा रहे हैं। बहुत मैत्री में हम लोगों को बताया कि ठीक है, आप लोगों का अधिकार है और यह 49 एक्ट जो है होना चाहिए खत्म,
और आप लोगों को आश्वासन देता हूं कि आप लोगों को हाथ में सौंपा जाएगा। हम प्रयास करेंगे। हम कहेंगे जब तक ले आपका प्रयास सफल नहीं होगा तब तक हम लोग वहाँ भूख हड़ताल में बैठेंगे। बहुत मैत्री में कहा कि बहुत बहुत बढ़िया है, ठीक है आप लोग जाइए। और न जाने किसके कहे अनुसार ये लोगों ने मैंने आतंकवादियों की तरह रात्रि में हमको साथ में इस तरह का और हमारे भिक्षु संघ के साथ में व्यवहार किया। ये तो सरासर गलत बात है। थोड़ा सा और भिखुनी है, थोड़ा सा उनसे हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। अच्छा चलिए पहले इनसे ही बातचीत कर लेते हैं। भैया आप लोग तो लगातार वहाँ पर रह रहे थे, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि लोग रात्रि में उठा के ले गए चोर जैसे? जिस तरह से कहा जाता है कि सोए हुए कुत्ते को नहीं जगाना चाहिए, और इस अभद्र व्यवहार किए भंते जी लोग के साथ में। देखिए सबसे पहले जिस प्रकार का ये घटना किया गया है, ये जो माननीय लोग हैं ये उस धर्म के चालक हैं, वाहक हैं। और हर धर्म के वाहकों की एक सम्मान होती है, उस सम्मान के साथ खिलवाड़ किया गया। और इनके सम्मान के साथ साथ देश नहीं विश्व के हुआ है। आज जो गया प्रशासन के द्वारा किया गया है, केवल कुछ लोगों को नहीं, पूरे विश्व में रहने वाले करोड़ों के संख्या में बौद्ध को मानने वाले लोगों के भावना को आहत की गई है। आप समझिए कि ये वो लोग हैं जो बुद्ध को मानते हैं। बुद्ध शांति को स्थापित किए, शांति के मार्ग को बताएं, और ये लोग उस मार्ग को आगे जन जन तक पहुंचाने का, विस्तार करने का काम करते हैं, लोगों को शिक्षा देने का काम करते हैं। उनके साथ ऐसे क्रिमिनल की तरह व्यवहार करना, अपराधी की तरह व्यवहार करना, 12 बजे 1 बजे रात्रि में घसीट करके इनको जो है डरा करके, धमका करके, बदतमीजी कर करके इनको धरना स्थल से हटाना, ये निंदनीय नहीं, दुर्भाग्यपूर्ण है हमारे गया जिला के लिए, बिहार प्रदेश के लिए ये दुर्भाग्यपूर्ण है। क्योंकि इस आंदोलन पे नजर केवल भारत के लोगों की नहीं है, केवल कुछ लोगों की नहीं है, किसी जाति विशेष, किसी धर्म विशेष के लोगों को नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय लोगों की इस धरना स्थल पे नजर था, हमारे लोगों पे नजर था। आप जो ये काम किए, इससे बिहार का अपमान है, बिहार के अधिकारियों का अपमान है, यहाँ पे रहने वाले बहुजन समाज मूल निवासियों का अपमान है। ये केवल इनका अपमान नहीं है सर। दूसरी बात ये है कि परमिशन की बात की जा रही है। हमें बताइए कि बौद्ध को मानने वाले भिक्षु और भिक्षुनी की अगर कोई मांगे हैं, कोई आम व्यक्ति नहीं है कि वहाँ पे जाकर के धरना नहीं डाल सकते हैं। ये उनकी अपनी निजी मामला है, कमेटी की मामला है, जिसमें सरकार इंटरफेयर करेगी और सरकार सुधार लाएगी। बिल्कुल। तो ये कहाँ बैठेंगे? अपने जगह पे नहीं बैठेंगे तो कहाँ बैठेंगे? ये जगह इनकी है, हमारी जगह है, और हमसे ज्यादा इनकी है। तो ये आप कैसे कह सकते हैं कि वहाँ इनको बैठने के लिए परमिशन चाहिए? मंदिर में बैठने के लिए, मस्जिद में बैठने के लिए किसी मुस्लिम को आवश्यकता है आवेदन की? मंदिर में बैठने के लिए किसी ब्राह्मण को आवश्यकता है आवेदन की? नहीं। गिरजा घर में बैठने के लिए पादरी को आवश्यकता है परमिशन लेने की। तो फिर हमारे लोगों को जो भिक्षु हैं उनको आवश्यकता है आपसे परमिशन लेने की अपने जगह पे बैठने के लिए? क्या वहाँ पे किसी पार्टी का, किसी संगठन का प्रोटेस्ट चल रहा है, धरना चल रहा है? नहीं। तो फिर किस बात की ये परमिशन यहाँ के प्रशासन मांग रही है? जिस धर्म से ये आंदोलन चल रही है, उस धर्म के शिक्षा पे ही इस देश के संविधान का नींव रखा गया है। और उस नींव को हम लोग और मजबूत करना चाहते हैं। कमजोर करने की कोई अगर हमारी मानसिकता होती तो जब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आए थे तो हजारों हजार की संख्या हो सकती थी। वही तो यहाँ के जिला प्रशासन के द्वारा रिक्वेस्ट किया गया था रिक्वेस्ट किया गया था कि सर वो अंतर्राष्ट्रीय जगह है, वहाँ पे सुरक्षा को लेकर के बहुत सारी बातें हैं, और उस बात को हमने एक्सेप्ट किया क्योंकि उन अधिकारियों से ज्यादा उस धर्म स्थल का हमें आवश्यकता है। उसकी सुरक्षा की सोच, जिम्मेदारी हमारी भी है, और उनसे ज्यादा हम सजग हैं। इन्होंने ये सोचा कि शांति शांति जपने वाले ये क्रांति नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये भूल रहे हैं कि ये शांति की जो शिक्षा दे रहे हैं, ये हम जो है, हम और शांति की शिक्षा लेने वाले हमारे लोग बुद्ध
को मानने वाले लोग सम्राट अशोक के वंशज हैं, वीर शिरोमणि चौहड़मल के वंशज हैं, जो बिहार में ऐसे समांतवादियों के खिलाफ लड़ाई लड़ी, हम सभी उनके वंशज हैं। उधम सिंह के वंशज हैं, भीमा कोरेगांव के वंशज हैं, महारो के वंशज हैं हम। तो हमारे अंदर क्षमता है क्रांति करने की, और हमने करके दिखाया है। हमें ये ना किया जाए, संविधान के बाहर जाकर के कुछ हमें ऐसा करने की आवश्यकता भी नहीं है। हमारी जनबल इतना है कि अगर लोग सच्चे मन से इसको एक्सेप्ट कर लिए इस आंदोलन को, तो शांतिपूर्ण तरीके से, संवैधानिक तरीके से सरकार को झुकना पड़ेगा। ये विरासत सिर्फ बौद्धों की विरासत नहीं, ये भारत की विरासत है। प्रशासन, सरकार समझे कि अगर हमने अपनी पूरी शक्ति लगाई बोध गया में आने के लिए, तो गया तो छोड़िए, इसके 500 किलोमीटर की परिधि में पैर रखने की जगह यहाँ की सरकार को नहीं छोड़ेंगे भी किसी भी कीमत पर। इतने लोग यहाँ आएंगे और किसी को भी घबराने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल जरूरत नहीं है। अगर भीम आर्मी के लोग खड़े हैं फिर घबराने की जरूरत नहीं है। अगर कुछ भी होता तो सबसे पहले सीने हमारे सामने होंगे।